not be afraid to receive each day's surprise, whether it comes to us as sorrow or as joy. It opens a new place in our hearts. Well, today we have lots of surprises for the beautiful audience present here. A very good morning and warm morning to Honorable Chairman Sir and respected Principal Sir, dignified teachers, all the present invitees, parents, and my dear friends. On the behalf of our school, I, Charna Soni, extend a very sincere welcome to all of you present here. Today is an important day for all of us. First of all, I would like to congratulate everyone, including me, on successfully completed 32 years. No doubt that our school is expanded year by year, and I heartily congratulate to all the members who have contributed to the success of the program. Such programs strengthen a wholesome development of the personality of the child. Let us start the event by offering our prayers to Ma Saraswati to pay tribute to Mother Saraswati, persona of knowledge. I request to our respected sir to inaugurate the function and to kindle the lamp in front of Goddess Saraswati. May the divine power bless us all. Thank you, sir. Thank you so much, everybody. Please take your seat. Now, before starting the program, we welcome our respected sir with bouquet. Thank you, sir. Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, fly to the imagination, and charm, and beauty to life and to everything. To begin this auspicious event, here comes the school chair with the welcome song.
amazing and we all feel the same. Here I am talking about the new academic session. Our next chapter of your life means a lot of challenges and it depends on you that how you make the strategy to overcome the challenges. Being a teacher, I strongly feel that each child is different and unique and this is a place where a proper shape is given to your future. So here I welcome a new academic session newcomer student for Tilak ceremony. थैंक यू बोलो भैया। A little tiny talks. Thank you, sir. There are several categories in which students can be awarded. There can be awards for excellence and academics for coming here. So I would like to request sir to give the award for good rankers. Okay, next is Prachi Sahu. He's got second prize from class nursery. Please give her a big applause. Yes, sir. Purvi Yadav. She got third rank from class nursery. KG1 Bhavya Chauhan from class first. Priyanshi Parekh, second rank. Please give them a big hand. Bani Parekh, third position. From KG2, Vivek Patel, first position. Ruhani Chandra, second position. Avika Kumari, third position. Please, parents, give them a big hand. Thank you, sir. Dance enhances skills of observation and concentration, which help students in all of their school subjects. Through dance, students learn teamwork and focus. It awakens new perception in children, which help them to learn a new way. So here we have a dance performance from our tiny toes of Vidyas Bhavan. A hard round of applause, please.
चलने नजरों की मनमानियाँ ढूंढे चलो कुछ ठिकाने और पतली पतली सी नादानियाँ खुशियों की दुनिया कुछ कुछ पागल बदले सौ बातें करता ये बुद्धू समंदर कुछ जुनून सा कुछ पागल बदले सौ बातें करता ये बुद्धू समंदर Now, I would like to request our principal sir to deliver welcome. मेरी आवाज पीछे से काली है। So thank you, Jhanna Madam, for calling me. And I would like to place my heartiest warm welcome to all the invited parents. यहाँ आज के संदर्भ में चूँकि हमारा नया शैक्षणिक सत्र प्री प्राइमरी के लिए प्रारंभ होने जा रहा है। किसी भी संस्था के लिए गौरवान्वित करने वाली बात होती है कि जब हम नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करते हैं। जिंदल आदर्श भारतीय संस्थान के बारे में आपको कई चीज़ें नूतन अन्वेषण के माध्यम से पता चलता है। जहां बाकी संस्थान वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कई संस्थानों में अभी क्लासेस संचालित हो रही हैं। इस तारतम्य में हमारा जिंदल आदर्श ग्राम भारती आज 1 मार्च को नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने जा रहा है। ये वाकई रेखांकित करने वाली है, गौरवान्वित करने वाली बात है। अब ऐसी स्थिति में अभिभावकों के आकांक्षाओं और उनके अपने चॉइस के हिसाब से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही संस्थान में, चाहे वो CBSE का पाठ्यक्रम हो या राज्य शासन का पाठ्यक्रम हो, CBSE का पाठ्यक्रम हो, ऐसे बहुविकल्पिक संस्थान रायगढ़ जिले के एकमात्र संस्थान है जिंदल आदर्श ग्राम भारती, जहाँ आप अपने चॉइस से, अपने डिजायर से, अपने विश से, अपनी इच्छाओं से और अपने मापदंड के अनुरूप किसी भी ऐसे विद्यालय का चुनाव कर पा रहे हैं जिसमें चाहे तो CBSE के माध्यम से पढ़ाई करा सकते हैं या स्टेट बोर्ड के माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से या हिंदी माध्यम से पढ़ाई करा सकते हैं। ये वाकई गौरवान्वित करने वाली बात है और संस्थान लगातार ये प्रयास करता है कि जो आपकी अपेक्षाएं हैं, आपकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी जवाबदारी है और उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए अच्छी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करें। ऐसे में अधिकांश अभिभावकों की ये सोच होती है कि इस बार संस्था में कुछ क्या ऐसी नया चीज़ है जो हमारे पालकों को शिक्षा के माध्यम से मिलने वाला है। आप सभी को मैं एक चीज़ रेखांकित करके बता देना चाहता हूँ और आप नेक्स्ट के माध्यम से भी देखेंगे, लगातार आप प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि इस पर जो शिक्षा की व्यवस्था है हमारे केंद्रीय पाठ्यक्रम के हिसाब से NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमने प्रयास प्रारंभ किया है। कई अभिभावकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के NEP का जो कॉन्सेप्ट है, कई अभिभावकों को साथ अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई होगी, लेकिन मैं सतेज आपको बता देना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय शिक्षा का अभी नया पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है जिंदल आदर्श ग्राम भारती में, ये नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के 2020 के मसौदे का कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें आप सभी ने सुना होगा कि ये एक तरह से 5+3+3+4 की व्यवस्था के तहत कक्षाएं संचालित हो रही है। 5 क्लासें होता है फंडामेंटल स्टेज। अभी हम यहाँ प्री प्राइमरी में फंडामेंटल स्टेज के तहत बच्चों का प्रवेश प्रारंभ किए हैं। फंडामेंटल स्टेज का आशय होता है कि नर्सरी, उसके बाद LKG, UKG, पहली
और दूसरी, ये 5 कक्षाएं फंडामेंटल स्टेज में आती हैं और इनका जो वर्ग है, जो इनका आयु है, जो एज ग्रुप है, नर्सरी के लिए 3 से 4 साल, LKG के लिए 4 से 5 साल, UKG के लिए 5 से 6 साल, स्टैंडर्ड फर्स्ट के लिए 6 से 7 साल और स्टैंडर्ड सेकेंड के लिए 7 से 8 साल। हम इसी वर्गीकरण के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से हम प्रवेश प्रारंभ किए हैं और लगभग जितने हमारे अभी वर्तमान में, कुछ दिन पहले जब हमारे परीक्षा के परिणाम घोषित हुए थे तो उसी हिसाब से हम कक्षाओं का पदोन्नति भी और कक्षा का प्रमोशन भी किए हैं। कई अभिभावक स्वेच्छा से अपने पालियों को चाहे वो UKG में या स्टैंडर्ड फर्स्ट में एडमिशन कराने के लिए अपनी सहमति दिए हैं। ये कमोबेश सभी संस्थाओं में देखने को मिला है, चाहे वो शिक्षार्थ बिल्डिंग हो या कर्नाट बिल्डिंग हो या फिर विद्यार्थी बिल्डिंग हो, CBSE का बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड का बोर्ड हो, सभी अभिभावकों ने अपनी सहमति दी है और उस सहमति के आधार पर हम कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। अभी जो नए हमारे एडमिशंस आ रहे हैं, नए एडमिशंस को भी हम NAP 20 के गाइडलाइंस के हिसाब से एडमिशन दे रहे हैं और लगातार इस सत्र हमारा एडमिशन की प्रक्रिया इसी पर आधारित होगी। कहने का आशय है कि CBSE के जो भी गाइडलाइंस आ रहे हैं या आने वाले हैं, जिधर आदर्श ग्राम लगभग उसके लिए हमेशा संवेदनशील है और अपने मापदंडों के अनुरूप और शिक्षा के संहिता के मापदंड के अनुसार हम अपने प्रवेश की व्यवस्था किए हैं। सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। अधिकांश अभिभावक हो सकता है कि अपने पालियों के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री परचेस कर लिए होंगे, लेकिन इसके अलावा भी हमारे संस्था में जो नूतन प्रयास है, संभवतः आने वाले शैक्षणिक सत्र में हम प्री प्राइमरी क्लासेस के बेस क्लास करने जा रहे हैं। कहने का आशा रहेगा कि जो छात्र यहाँ पर आएंगे, तो मान आ रहे हैं प्री प्राइमरी के, हो सकता है कि वो बिना बैग के आएंगे, उनका बैग एक दिन मंडे को आएगा और फ्राइडे तक रहेगा और जो छात्रों में जो गृह का होमवर्क है उसके जगह अब क्लास वर्क होगा। शिक्षक के मॉनिटरिंग में सारे छात्रों को गुणात्मक विकास किया जाएगा और जो फ्राइडे को लास्ट में घर जाएंगे तो वो वही बैग लेके जाएंगे। बैग सिर्फ 2 दिन के लिए लेके जाएंगे, शनिवार और रविवार। वो 2 दिन में जितना भी होमवर्क है, पालक चाहे तो अपने बच्चे को कापियाँ देख सकते हैं, रिवाइज करवा सकते हैं या छुट्टी का लाभ ले सकते हैं, लेकिन सोमवार को आएंगे तो पुनः बैग लेके आएंगे और उसके बाद मंडे को भी सबमिट कर देंगे। तो ये बैग लेस का कॉन्सेप्ट हमने पिछले मीटिंग में भी अभिभावकों को बताने की कोशिश किया है और प्रबंधक का जो मीटिंग हुआ हम इसमें कोशिश कर रहे थे अभिभावकों को सारी जानकारी दे, लेकिन इस शिक्षा पद्धति में और नई शिक्षा पद्धति में जो भी नए मापदंड है, उस सभी मापदंडों को आपके छात्रों के विकास के लिए निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं और उससे छात्र लाभान्वित हो, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। अगर PTM के दौरान आपने देखा होगा कि हमने प्रोग्रेस कार्ड के साथ एक स्टूडेंट का प्रोफाइल भी दिया है। स्टूडेंट का प्रोफाइल के सारे पॉइंट्स हम जो छात्रों के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है, चाहे वो जितने भी पॉजिटिव चीज़ है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, जितने भी गाइडलाइंस है और जितने भी टीचर्स के द्वारा कमियां पाई गई हैं, उसको हमने प्रोफाइल में मेंशन किया है। अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया प्रोफाइल को जरूर चेक करें और कुछ अभिभावक जो प्रोफाइल को नहीं ले गए होंगे, कृपया प्रोफाइल को ले जाए टीचर से और देखें कि आपके पालियों में और क्या सर्वांगीण विकास करने में कमियां रह गई हैं। उस कमियों को दोनों मिलकर प्रयास करें। शिक्षकों के माध्यम से आप सभी अभिभावकों को भी प्रयास करना चाहिए ताकि हम एक सर्वांगीण विकास की अवधारणा को पूर्ण कर सकें। ये सभी के लिए बहुत ही जवाबदेही है और सभी मेरा अभिभावकों से अनुरोध है कि संस्था पर जब इस प्रकार की कोई योजनाएं होती है, किसी प्रकार का कार्यक्रम होता है, तो आप भी ऐसे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि हम भी इस कमियों को दूर करते हुए आपके छात्रों को ऐसा वातावरण दें जिसमें शिक्षा के अलावा अशिक्षकीय कार्यक्रम जो सैटरडे को कार्यक्रम होते हैं, जो हाउस एक्टिविटीज कहलाते हैं, और उसके अलावा भी जो हमारे अदर कार्यक्रम हैं जिसमें एनुअल स्पोर्ट्स है, एनुअल फंक्शन है, सेरेमोनियल एक्टिविटीज है, फेस्टिवल्स है, ये सारे करिकुलम जो हमारे एक्स्ट्रा करिकुलम है, नॉन स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज है, इसका भी लाभ छात्रों को मिले। आप सभी ने देखा होगा कि जो वर्तमान में छात्र हैं या जो पढ़ रहे थे, उनको सारे चीज़ों का, सारे एक्टिविटीज का फायदा मिल रहा था। हम यूट्यूब में भी सारे कॉन्टेंट्स को डाल रहे थे और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। अभी जो हमारा प्रदर्शन छात्रों के ग्रुप के द्वारा हुआ, इससे भी आपको पता चलता है कि सिर्फ 1 या 2 दिन के प्रयास में छात्रों में इस प्रकार की बौद्धिक, इस प्रकार की क्षमता का भी विकास हो रहा है। कहने का आशा है कि छात्रों में कैलिबर बहुत है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, बस आवश्यकता उनको सही दिशा देने की, सही गाइडलाइंस देने की। इस एक गाइडलाइंस दोनों के माध्यम से होना चाहिए, शिक्षकों के प्रयास से और आपके मार्गदर्शन से। इसलिए हमेशा जब भी ऐसी चर्चा होती है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए और क्या किया जाना चाहिए, तो इसमें हमेशा हमारा अनुरोध होता है कि अभिभावकों को भी उतनी ही जवाबदारी लेनी होगी जितनी शिक्षकों से आपसे अपेक्षा की जाती है।
आप सभी, चूंकि आज हमारा प्रवेश का प्रथम दिवस है, जितने भी हमारे पाली यहाँ पर आए हैं, नए प्रवेश छात्र यहाँ पर आए हैं, सभी छात्रों को हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से अशेष शुभकामना है। और हमारे जितने भी वर्किंग डे हैं, अभी हमने 203 वर्किंग डे पूरा किया है, और आगामी शैक्षणिक सत्र में हम आज के परिवेश में बात करें तो ये वर्किंग डे लगभग 250 वर्किंग डे की हमारी अग्रिम प्लानिंग चल रही है। 2023-24 की शुरुआत हमारे किस ढंग से हो और इसका प्रभाव कैसे पड़े, हम इस पर भी हमेशा विचार करते हैं। संस्थान चूंकि वार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा चल रही है, इसके बावजूद भी प्री प्राइमरी की क्लासेस के नया शैक्षणिक साल प्रारंभ हो जाना यह वाकई में छात्रों के लिए गौरवान्वित विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में 2 मार्च से लगातार विद्यालय भेजना प्रारंभ करें, ताकि छात्रों को सारी व्यवस्था का लाभ मिले। आप सभी नियमित रहें और छात्रों को भी नियमित रखें। से जितनी भी जानकारियाँ समय समय पर हमारे शिक्षकों के द्वारा दी जाती है, उसका लाभ उठाएं और उसका परिपालन भी करें। समस्या किसी प्रकार की हो, समस्याओं से अवगत कराएं। हम भी प्रयास करेंगे कि छात्रों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। Ultimately, I would like to place my great thanks to all the dignitaries and the students as well the parents of giving the 100% cooperation to the students. It's 10:54 a.m. And I just presume in near future also I will receive the same blessing from your side. मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लगभग उसमें से 50 से 60 ऐसे परसेंटेज के पेरेंट्स हैं जो लगातार संस्था के विकास के लिए अपने हमेशा सहयोग देते रहे हैं, लेकिन ये तादाद बढ़नी चाहिए। अब आने वाले समय पर हमारे पास शिक्षा की बहुत अच्छी अवधारणा है, अच्छी विस्तार के साथ हम शिक्षा को कम से कम CBSE के माध्यम से हम शिक्षा की गुणवत्ता को और भी ऊपर ले जाना चाहते हैं। इसमें हमेशा जो हमारे अभिभावक हैं, अभिभावकों से सहयोग की अपेक्षा है। आप सभी अभिभावक हमारे विद्यालय आए, उपस्थित हुए, छात्रों को ले आए, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू।
त्योहार पे कैसा लगा और आपका एक्सपीरियंस क्या है, हम चाहते हैं आप हमारे साथ शेयर करें। तो आप में से कोई है जो मतलब शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस? गुड मॉर्निंग टीचर्स और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा यहाँ पर उसका एडमिशन हुआ था नर्सरी क्लास में। बच्चे की जो मतलब एक पढ़ाई के साथ साथ एक जो एक्टिविटी होती है वो सबसे पहले देखी जाती है कि भाई हम स्कूल में जब जहाँ उसे पढ़ाते हैं वहाँ पर वो कैसी एक्टिविटी करता है, उसे क्या क्या सिखाया जाता है। तो सिखाने के लिए तो हम घर पे जो सिखाते हैं वो ठीक है, पर साथ ही साथ स्कूल में बहुत मतलब उसकी लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ होनी चाहिए कि हम उसे क्या सिखा रहे हैं, टीचर्स उसे क्या सिखा रहे हैं। इस स्कूल के बारे में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाने के साथ साथ जो एक्टिविटी कराते हैं वो बहुत ही अच्छी कराते हैं। और मुझे तो ज़्यादा टीचर्स के नाम नहीं पता, एक है ज्योति मैम, संध्या मैम, झरना सोनी मैम। इन्होंने जो मतलब अभी तक जो पढ़ाया वो इतना बढ़िया मेरे बच्चे को प्रोग्रेस हुआ उसमें कि मैं बता नहीं सकती। चाहे फिर आप वो पिकनिक लीजिए, गेम्स लीजिए, डांस लीजिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ इन सब चीज़ों का। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डियर प्रिंसिपल एंड माय डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स। मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरा बेबी स्टैंडर्ड UKG में है। वो साल भर में जो एक्सपीरियंस किया है टीचर्स के द्वारा, चाहे बच्चों के बीच में वो एक्टिविटी के लिए, चाहे वो एक्शन वर्ड के थ्रू, चाहे डांस के थ्रू, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और होमवर्क और क्लास में रीडिंग राइटिंग जो भी है मैम लोग बहुत अच्छे से काइंडली बच्चों को हैंडल करती हैं और अच्छे से उनका क्लास में ध्यान भी रखती हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो उसको बहुत अच्छे से समझाती भी हैं, एक बार दो बार, चाहे वो बार बार रिपीट करके भी बताती हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वो मैसेज करके घर पे भी इन्फॉर्म करती हैं कि आप अपने बच्चों को इस पर ध्यान दीजिए, चाहे जो भी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी सर, चेयरमैन सर एंड यहाँ टीचर्स, यहाँ आए पेरेंट्स, मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि यहाँ का जो पढ़ाई है, एक्टिविटी है, और मुझे सबसे अच्छा लगता है जब बच्चे को पोयम माइक के द्वारा बोलना सिखाते हैं, स्टेज पर जाना सिखाते हैं। और क्या बोलते हैं, यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इस बार मेरा बेटा नर्सरी में था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या बोलते हैं, थैंक यू इतना बोल के। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने बेटा से कुछ बोलवाना चाहती हूँ। और वो आप सबसे कुछ सर मैं रिक्वेस्ट हूँ। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स, आप सभी पेरेंट्स और प्यारे प्यारे छोटे बच्चे, नए सेशन की क्लास आज शुरू करने जा रहे हैं। आज से इसमें जितना भी जिन्होंने भी नया एडमिशन हमारे स्कूल में लिया है वो सब आप अभी यहाँ बैठे हैं। विद्यालय की प्रबंधन समिति का प्रयास हमेशा से ये रहा है कि कम से कम शुल्क में बेहतर से बेहतर शिक्षा बच्चों को दी जाए। और शिक्षा का मतलब केवल पढ़ाई लिखाई से ही नहीं होता, अन्य गतिविधियां जो और भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब पर भी उतना ही फोकस किया जाता है। जैसे
आज हम 2023 में खड़े हैं, जहाँ पर हर शब्द, हर वाक्य का एक बहुत ही गहरा मतलब होता है, बहुत ही बड़ा मतलब होता है। पहले के ज़माने में शिक्षा मतलब केवल पढ़ाई लिखाई से जोड़ के देखा जाता था कि आपके स्टूडेंट, आपका बच्चा जो है वो लिख पा रहा है कि नहीं, वह बोल पा रहा है कि नहीं, वह पढ़ पा रहा है कि नहीं। अब लेकिन आज की तारीख में शिक्षा का स्तर बहुत व्यापक हो गया है, बहुत ब्रॉड हो गया है, बहुत वाइड हो गया है। उसके साथ साथ उसको यह भी जरूरी है कि वो अपने आप को कैसे इस दुनिया के आगे प्रस्तुत कर सके। जैसे कि अभी बाबा बाबा ब्लैक शिप, उस बच्चे ने पोएम रीड करी। अभी अगर कई लोगों के पास में माइक चला जाएगा तो उसके हाथ कांप जाएंगे कि मैं कैसे बोलूँ, नहीं बोलूँ। लेकिन वो 3 साल का बच्चा जो नर्सरी पढ़ा हुआ है, उसने पोएम को बहुत ही निडर तरीके से, बिना डरे हुए उसने पोएम को बोला। तो इसी प्रकार से विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ के निकलेंगे, आप इसके लिए तो निश्चित रहें कि वो अपने आप को इस दुनिया में, इस संसार में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेंगे। 24 घंटे में से 4 घंटे आपका बच्चा हमारे पास है, बाकी 20 घंटा आपके पास है। 4 घंटे छोड़ के आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि 20 घंटे में हम भी ध्यान दें कि क्या बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया गया है, होमवर्क क्या मिला है, जो होमवर्क मिला है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, टीचर्स ने बराबर होमवर्क चेक किए हैं कि नहीं। और फिर आप लोगों से जो फीडबैक आएगा उस पर हम काम करेंगे और हमारी व्यवस्था को और सुधारने का प्रयास करेंगे और जितनी बेहतर से बेहतर व्यवस्था आप सभी को दे पाएं, जो भी एक निर्धारित फीस है उसके एवज में, वो हम पूरा प्रयास करते रहेंगे देने का। यह एक बात तो निश्चित है कि अगर विद्यालय में कोई भी अगर स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर के आपके पास घर जाएगा, जीरो होकर के तो नहीं जाएगा। इस बात की 100% गारंटी हम ले रहे हैं। अब उस एक अच्छी बात को जो भी वो सीख करके जा रहा है, उसको उसके जीवन में लाना आपकी जिम्मेदारी है, उसको प्रैक्टिस कराना आपका काम है। प्रैक्टिस आप भी कराइए, हम भी यहाँ से लगे हुए हैं और एक बेहतर से बेहतर भविष्य आपके बच्चे का बने, आपका बच्चा, हमारा बच्चा। अगर आपका बच्चा आगे चल करके अच्छा प्रयास करता है, अच्छा काम करता है, सबसे ज़्यादा नाम आपका रोशन होगा, विद्यालय का तो होगा, उसके टीचर्स का भी होगा, सबके लिए एक सम्मान की बात होगी। आप सभी को मैं आने वाले सत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और जो भी बच्चे हमारे विद्यालय में नया प्रवेश लिए हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके और हमारे बच्चों का भविष्य बनाने में आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। धन्यवाद। एक्टिविटीज कराई है, उसकी एक झलक हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं। राखी सेलिब्रेशन, काइट मेकिंग एक्टिविटी, कॉर्ड में एक्टिविटी,
बदमाशियों से जरा पास आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। अरे बदमाशियों से जरा पास आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। क्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम देखो किताबों से आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो वो पढ़ो, बढ़ो तो महंगा मिलेगा। लिखोगे पढ़ोगे ना, खेलोगे लिखोगे तमोगे खरा, लिखोगे तमोगे खरा, खेलोगे लिखोगे तमोगे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। ऐसी हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। ठीक है तो मैं करूँगा बहाना, कैंसल है मंडे को स्कूल जाना। जिद में लेने करो, चलो बांधे में चलो, डरो तो डंडा मिलेगा। लिखोगे पढ़ोगे ना, खेलोगे लिखोगे तमोगे खरा, चलोगे लिखोगे तमोगे खरा, खेलोगे लिखोगे तमोगे एक्सपीरियंस आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वो जितनी देर स्कूल में रहते हैं हम उसे एज ए मदर ट्रीट करते हैं। वो हमारे बच्चे होते हैं और हम यही चाहते हैं कि बच्चे यहाँ जितनी देर हैं वो यहाँ से ज़्यादा सीख कर घर जाए और घर जाके वो ये बताएं कि हम आज स्कूल से ये सीख कर आए हैं। तो इससे टीचर की जो होती है मतलब टीचर के लिए बहुत बड़ी एक बात होती है कि बच्चा घर जाके अगर वो ये कह रहा है कि मैं आप टीचर से ये सीख के आया हूँ। तो एज ए मदर ये एक्सपीरियंस मैंने भी फील किया है। मेरी बेटी भी 3 इयर्स की है, वो अभी नर्सरी क्लास में है। वो अभी स्कूल जाना स्टार्ट की है और वो जब स्कूल से घर आती है तो मेरी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको लेकर कि वो स्कूल से क्या सीख के आई है, जबकि मैं खुद एक टीचर हूँ। लेकिन फिर भी मेरे एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि जब वो स्कूल से आई है तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ ये जानने के लिए कि आज वो स्कूल से क्या सीख कर आई है। तो मैं आप सबकी एक्साइटमेंट भी समझ सकती हूँ। ऐसे मदर हम सारे टीचर्स मदर हैं और हम सब ये जानते हैं कि एज ए पेरेंट्स आप लोग क्या फील करते हैं जब बच्चा घर जाता है। तो आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, आप लोग क्या जानना चाहते हैं। तो हम लोग भी बिल्कुल वैसे ही उनको यहाँ ट्रीट करते हैं एज ए मदर, जैसा हम फील करते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी वैसा ही फील करें कि बच्चा स्कूल से क्या सीख के जा रहा है, बहुत अच्छा सीख के जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीख के जाए। तो एक्सपेक्टेशन जैसे आपकी होती है वैसे हमारी भी होती है कि बच्चा अच्छे माहौल से आए, अच्छा उसको घर में भी एक अच्छा माहौल मिले। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोगों ने इस साल भी आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ प्लान किया है कि बच्चों को और हम क्या अच्छे से अच्छा सिखाएं। हम चाहते हैं कि बच्चा जब स्कूल आए तो इस साल हम उसे बैगलेस क्लास दें। जैसे वीकली बच्चा आए बैग लेके मंडे और उसकी कॉपी बुक्स हम सब यहाँ पर सबमिट करें। बुक उसके बैग पूरे स्कूल में ही रहे, बच्चा सिर्फ टिफिन और बॉटल स्कूल लेकर आए। और वीक के लास्ट डे जैसे फ्राइडे बच्चा फिर वो बैग घर लेकर जाए और आप लोग उसका होमवर्क कॉपी चेक करें कि बच्चे ने पूरा वीक क्या किया है। तो हम चाहते हैं कि इस साल हम बैगलेस क्लासेस रन करें। तो और भी हमने बहुत कुछ सोचा है, प्लानिंग की है, तो उसकी कुछ एक झलक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। Glimpse of our school. Attractive, colorful
आप लोग भी अभी जाते हुए क्लासेस देखेंगे, वैसे आपने देखी होगी एडमिशन के टाइम हमारी कलरफुल क्लासेस, जिससे बच्चा और अट्रैक्ट हो। जैसे बच्चे फर्स्ट टाइम स्कूल आते हैं तो उन्हें घर का माहौल नहीं मिल पाता है, उन्हें लगता है कि घर में हम टीवी देखते हैं, हम स्कूल आए तो कैसा लगेगा। तो हम उन्हें एक माहौल देने के लिए एक अच्छा कार्टून कैरेक्टर्स के साथ क्लास में हम उन्हें कलरफुल क्लासरूम दे रहे हैं, जिससे बच्चा अट्रैक्ट होकर उसे स्कूल आने का मन करता है। नेक्स्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग क्लासेस। ये क्लासेस तो हमारी ऑलरेडी रन होती है, जिससे बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है। इसमें हम ऑरिगेमी सिखाते हैं, जैसे कागज से, क्राफ्ट पेपर से और बहुत सारी चीज़ों से बच्चों जिससे बच्चे खुश होते हैं, तो ये सारी क्लासेस भी होती है। म्यूजिक एंड डांस क्लास, बच्चे हमारे यहाँ म्यूजिक क्लासेस भी होती है। म्यूजिक सर है हमारे, म्यूजिक क्लास बच्चों को लेके जाते हैं। बच्चे वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीख रहे हैं, और इस तरह हम उन्हें इंस्ट्रूमेंट के साथ हम चाहते हैं कि जैसा आपने अभी वेलकम सॉन्ग देखा, वैसा हम और अच्छी तरह हम छोटे बच्चों का तैयार करें, और बच्चे वेलकम सॉन्ग अब नेक्स्ट बार जब आए तो हमारे छोटे बच्चे हमारे टाइनी डॉट सबको वेलकम करें। तो उसकी प्रिपरेशन हमारी चल रही है। योगा क्लासेस, हमारी योगा मैम है रमा पटेल मैम, वो हमारी योगा मैम है। योगा क्लासेस भी हम रन करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे के माहौल, कैसा माहौल उसे स्कूल में मिल रहा है, कैसा माहौल उसे घर में मिल रहा है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना। कि लोगों के सामने जब हम बच्चों को लेके जा रहे हैं तो वो उन्हें विश करते हैं। अगर कोई बड़ा हमारे सामने है तो हम उन्हें, अगर हम उनसे सुबह मिल रहे हैं तो हमें उन्हें गुड मॉर्निंग कहना है, गुड आफ्टरनून कहना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि हमारे घर का माहौल कैसा है, बच्चा किस माहौल में रहता है, तो वो सब डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्लासेस रन करते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी को और डेवलप करे और वो बच्चा और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी, आपको तो पता ही है आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। उससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट, कलर्स, ड्राइंग, योगा, ये सब जो भी हमारे यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चों को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम लोग करवाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं, और आगे भी हमारी यही रहेगी कि हम बच्चों को और अच्छे से अच्छी एक्टिविटीज़ कराएं, ताकि आप भी उनसे सेटिस्फाई रहें और हम भी। ये very wonderful good morning, respected principal sir, manager Shri Pranay Kumar Agrawal sir, respected parents and my dear tiny tots. As you guys know, today is the opening ceremony of Jindal Adarsh Grammar Bharati School. This is the first day of the school for the new admitted students, and you have already seen the performance which is performed by our 3 minutes students, Jnana, Shiksha and Vidya students. आप सभी पेरेंट्स का मैं बहुत तहे दिल से वेलकम करती हूँ। और आप सभी ने यहाँ पर जितना हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया, इसके अलावा आपने यहाँ ये भी दिखा कि हमारे यहाँ स्कॉलरशिप और नॉन स्कॉलरशिप दोनों को बैलेंस में रखकर यहाँ स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है। स्कॉलरशिप मीन्स एकेडमिक एरिया और नॉन स्कॉलरशिप मीन्स नॉन एकेडमिक एरिया लाइक द एक्टिविटीज। आज के समय की जो डिमांड है वो ये है कि बच्चा हर फील्ड में परफॉर्म करे और ऑलराउंडर हो, ना कि सिर्फ पढ़ाई में बल्कि अदर एक्टिविटीज में। तो आप सभी आए, ये बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक सारे जितने हमारे न्यू एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं सभी के पेरेंट्स आए हैं, थैंक यू। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने इतना अच्छा गाइडलाइन दिया और हमारा ये प्रोग्राम एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल मोड में गया। प्रणय कुमार अग्रवाल जो कि हमारे मैनेजमेंट मेंबर हैं और हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। माय डियर टीचर्स, जिनका एफर्ट बहुत ज़्यादा था इन सभी बच्चों का फ्यूचर बनाने में, और आपने भी देखा कि बच्चे ने कितने सुंदर ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दी गई। हमारे पेरेंट्स जो यहाँ पर अपना वैल्यूबल टाइम देकर यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सैलरी बोर्ड भी बच्चों को सैलरी
Principal sir, Pranay Agrawal sir, and our lecture ma'am ठीक है to give them a gift, distribute the gifts and chocolate. बच्चों को चॉकलेट्स भी उसी के साथ देते हैं, एक लगा के